Good evening, guys. Welcome, everyone. Audio video is all clear. Audio और video में कोई problem तो नहीं है? There is no lag. There is no echo. Yes. Okay. Everything is fine. Okay. 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 So how are you guys doing? I hope everyone is working really hard. गेट का एग्जाम पास आने वाला है, तो आप लोगों की पढ़ाई ज्यादा और ज्यादा हो गई होगी, टाइमिंग्स और ज्यादा हो गई होंगी, आई गेस, राइट? Okay. And how is the course of strength of material going on YouTube? Any suggestions from your side? Okay. No suggestions. So I hope everything is going fine. Okay, it's going great. ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलो. So in today's session, what we are going to do, we are going to solve problems of shear stresses in beams. आज की क्लास में हम shear stresses in beams के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. shear stresses in beams के ऑलरेडी हम 2 लेक्चर्स देख चुके हैं यूट्यूब पे. ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम shear stresses in beams. आज की क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. And beta, today we are going to learn new concepts related to shear stresses in beams. Okay, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको नया कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. शैल वी स्टार्ट द प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स चालू करें. ओके. So those of you who have still not joined the Telegram channel, please go and search Approve 10 in your Telegram app and join the Telegram channel as soon as possible, because you are going to get all the notifications of my classes in this channel. ठीक है, इसी चैनल में मैं सारी क्लासेस की नोटिफिकेशंस डालूंगा, वो अनअकैडमी पे हो या यूट्यूब पे हो. ठीक है, तो आप कभी भी मेरी कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे. You will never miss a class that I am taking either on YouTube or on Unacademy. Okay. So let's start with the problems of shear stresses in beams. So I hope everyone is ready with their pen, notebook, and calculator, because today we are going to solve some really interesting problems. This is the first question in front of you. Read the question and solve the problem. I hope those of you who have been watching my lectures of YouTube will solve this very easily. जो भी मेरे YouTube के लेक्चर्स देख रहे हैं, जो भी फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, वो तो आराम से सॉल्व कर लेंगे. A laminated wooden beam 120 mm wide and 180 mm deep is made of 3 120 mm into 60 mm planks glued together to resist the longitudinal shear. The beam is simply supported over a span of 2.5 meter. If the allowable shear stress in the glued joint is 0.5 megapascal, the safe UDL the beam can carry is. अब इस प्रॉब्लम को पढ़ के पहले अच्छी तरह समझो, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन स्टार्ट योर सॉल्यूशन. ओके, सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझना जरूरी है, उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. ओके, so we have a simply supported beam. We have a simply supported beam which is subjected to a UDL. ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे UDL लग रहा है कुछ इस तरीके से. We don't know the load per unit length. Let's call it W. Okay, the length of the beam is how much? 2.5 meter. Okay, now it is made of 3 different strips. जो क्रॉस सेक्शन है वो 3 अलग अलग स्ट्रिप्स से मिलके बना है. ठीक है, इट इज अ लैमिनेटेड बीम.
लैमिनेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? लैमिनेशन कर रहे हो मतलब कि आपने अलग अलग स्ट्रिप्स यूज की हैं। ओके, तो मान लो ये एक स्ट्रिप है। ओके, फिर ये दूसरी स्ट्रिप है। ओके, 120 mm इंटू 60 mm, एंड देन फिर ये तीसरी स्ट्रिप है। तो ये चीज क्लियर है आपको? आपने अलग अलग स्ट्रिप्स यूज की हैं। ओके, आपने अलग अलग स्ट्रिप्स यूज की हैं ताकि आप इन तीनों को जोड़ के एक क्रॉस सेक्शन बनाए। ओके, नाउ अंडरस्टैंड बेटा, द न्यूट्रल एक्सिस विल बी एट द सेंटर, राइट? न्यूट्रल एक्सिस तो सेंटर पे आएगा, दिस विल बी द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, नाउ हमने इस सेक्शन को ग्लू किया हुआ है और इस सेक्शन को ग्लू किया हुआ है। ओके, so beta, understand, they have given us the shear stress, allowable shear stress of the joint. So this is the glued joint. ये जो joint है ये glued joint है, this is the glued joint. तो बेटा हमको ये देखना है कि इस glued joint पे मैक्सिमम स्ट्रेस 0.5 या उससे कम होना चाहिए, अदरवाइज द ग्लू विल फेल एंड दीज लैमिनेशंस विल कम ऑफ, है कि नहीं? ये ग्लू जॉइंट जो है इस पे स्ट्रेस 23 मेगापास्कल होना चाहिए, सॉरी 0.5 मेगापास्कल होना चाहिए। ओके, सो बेटा वी विल use the equation of tau max, we will use the equation of tau to calculate the tau on this joint। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ये हाइट कितनी होगी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी दिस हाइट? व्हाट विल बी दिस हाइट? ये कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी दिस हाइट? दिस विल बी 30 mm। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 60 mm। नाउ वी नीड टू फाइंड द टाउ ऑन दिस ग्लू जॉइंट। ठीक है, इस ग्लू जॉइंट का टाउ निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम शियर फोर्स। अब मैक्सिमम शियर फोर्स यहाँ पे एंड्स पे आएगा। इफ यू ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम, यू विल गेट अ शियर फोर्स डायग्राम लाइक दिस। इस तरीके का शियर फोर्स डायग्राम बनेगा। दिस विल बी WL/2, दिस विल बी WL/2। WL/2 मतलब कितना? 1.25 W हो जाएगा ये। So maximum shear force will be 1.25 W, right? So what will be my tau on the glued joint? Glued joint के ऊपर tau can I write like this? S into AY bar divided by I into B, right? Now what will be S? S कितना होगा बेटा? S कितना होगा? What will be S? टाउ की वैल्यू कितनी है ग्लूड जॉइंट पे? मैक्सिमम 0.5 मेगापास्कल। व्हाट विल बी एस? 1.25 W, है ना? एंड इट इज इन किलो न्यूटन पर मीटर। तो अगर मैं इसको न्यूटन पर mm में कन्वर्ट करूंगा तब भी ये इतना ही आएगा, है ना? W किलो न्यूटन पर मीटर में है, न्यूटन पर mm में कन्वर्ट करूंगा इतना ही आएगा, बट दिस 1.25 मीटर इज देयर। तो ये 10 टू द पावर 3 हो जाएगा कि नहीं? यूनिट कन्वर्जन क्लियर है? W का यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, किलो न्यूटन पर मीटर एंड न्यूटन पर mm इज सेम। ओके, बट लेंथ का जो यूनिट है वो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेंथ इज इन मीटर, सो आई हैव टू कन्वर्ट इट इन mm। तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय AY बार। अब AY बार किस एरिया का लेना है बेटा? AY बार किसका लेंगे? AY बार इस एरिया का लेंगे, एरिया अबव द ग्लू, एरिया अबव द ग्लू। तो ये एरिया कितना हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाइड बाय 120। एरिया हो जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाइड बाय 120। एंड व्हाट विल बी Y बार? इसके सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। Y बार विल बी 60 डिवाइडेड बाय I। अब टोटल I कितना होगा पूरे क्रॉस सेक्शन का? विड्थ इज
width is 120 and height is how much 180. तो ये हो जाएगा 120 into 180 क्यूब बाय 12 multiplied by b कितना हो जाएगा, what will be b? b will be 120. So in this equation everything is known, the only unknown is w. So solve this and find out what will be w. कितना आ रहा है w, कितना आ रहा है 0.5 into 120 square into 180 cube divided by 12 into 1.25 to the power 3 into 60 into 60 into 120. Are you getting 6.48? 6.48 आ रहा है क्या? Are you getting this? 6.48 kilonewton per meter. Can anyone confirm? Is my calculation correct? कोई कंफर्म कर सकता है क्या मैंने कैलकुलेशन सही किया है? जहां तक मुझे लग रहा है मेरा कैलकुलेशन सही है. यस, आना बोलो बेटा. प्लीज कंफर्म द आंसर. Okay, so 6.48 kilonewton per meter is the correct answer, right? Now let's move on to the next question. अब ये glute joint वाला हो गया, ठीक है? यहाँ पे they were saying that glute joint का strength इतना है. Now how much maximum UDL we can apply? तो glute joint पे tau की equation बना के from there we calculated the value of W. Okay. Next question की तरफ चलते हैं. Now this is the next question. A beam is made up of a channel section 120 mm into 60 mm which has a uniform thickness of 15 mm as shown in figure. If the shear force is 120 kilonewton, the ratio between maximum shear stress and average shear stress is. Now in this problem we need to find the ratio of maximum shear and average shear. Okay. Now beta understand. Average shear तो we can easily calculate, right? Force upon area से we can easily find the average shear stress. We need to calculate the maximum shear stress. Average में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, maximum पहले निकाल लेते हैं, ठीक है? तो बेटा maximum shear stress कहाँ आएगा? Where are we going to get the maximum shear stress? Maximum shear stress कहाँ आ सकता है? कहाँ आएगा maximum shear stress? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां आएगा? यस, न्यूट्रल एक्सिस या फिर आप बोल सकते हो सेंटर पे आएगा. ओके, यहाँ सेंटर पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा, राइट? सो वी नीड टू फाइंड ए वाई बार ऑफ दिस एरिया. इस एरिया का ए वाई बार निकालना पड़ेगा हमको, इस एरिया का ए वाई बार निकालना पड़ेगा. तो इस एरिया का ए वाई बार निकालने के लिए वी विल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. एक ये पार्ट हो गया, वन दिस रेक्टेंगल, और एक ये दूसरा वाला रेक्टेंगल, ठीक है? तो एक ये रेक्टेंगल हो गया, एक ये रेक्टेंगल हो गया. ओके, तो बेटा टाउ मैक्सिमम विल बी इक्वल टू व्हाट इज द शियर फोर्स. अच्छा, इसका आई भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? इसका आई भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो पहले आई निकाल लेते हैं क्योंकि वो आई की जरूरत पड़ेगी. ओके, सो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आई? हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आई? कंप्लीट रेक्टेंगल माइनस दिस रेक्टेंगल कर सकते हैं, है ना? कंप्लीट रेक्टेंगल माइनस दिस रेक्टेंगल, राइट? कंप्लीट रेक्टेंगल माइनस दिस रेक्टेंगल, ठीक है? तो कंप्लीट रेक्टेंगल का आई कितना हो जाएगा बेटा? 60 इंटू 120 क्यूब बाय 12 माइनस ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है इसका कितना हो जाएगा? 45 इंटू
ये कितना हो जाएगा 90 क्यूब बाय 12, राइट? हाँ कि ना? 60 इंटू 120 क्यूब बाय 12 माइनस 45 इंटू 90 क्यूब बाय 12, कितना आ रहा है? 5906,250 mm to the power 4. Now calculate tau maximum. ठीक है, अब tau maximum निकाल लो। तो shear force is 120 किलो न्यूटन S इंटू ए वाई बार। अब ए वाई बार के लिए फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया कितना? 60 इंटू 15 एंड वाई बार कितना? इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर टू हियर? कितना? 60, यहां सेंटर से टॉप तक 60 माइनस 7.5, 60 माइनस 7.5 कितना? 52.5, 52.5 ना, प्लस सेकेंड का एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 60 माइनस 15, ये हो जाएगा 45। दिस हाइट विल बी 45 इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाय इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 45 बाई 2, 22.5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय I into B, divided by I into B. What is I? 5906,250 multiplied by what will be the B? अब बेटा मैंने आपको बताया था, I told you this that if you are calculating tau on any layer, you will put the width of that layer. ठीक है, तो इस लेयर की width कितनी है? What will be the width of this particular layer? 15. Okay, so don't put width equal to 60. Okay, 60 मत रख देना width। जिस लेयर पे निकाल रहे हैं उस लेयर की width तो आपको सिर्फ 15 मिल रही है, राइट? नाउ कैलकुलेट टाउ मैक्स, कितना आ रहा है? 84.57, वेरी गुड, वेरी गुड। 84.57 megapascal. So this is my tau maximum. Okay, now we need to calculate tau average also, but calculating tau average will be very easy, force upon area, है ना? Tau average is just force upon area. Force is 120 kilonewton and we can easily calculate the area, right? एरिया कितना हो जाएगा बेटा? एरिया कितना हो जाएगा? इन तीनों रेक्टेंगल का एरिया या तो जोड़ दो या तो टोटल रेक्टेंगल में से ये माइनस कर दो। ठीक है, मैं टोटल में से माइनस कर देता हूं, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो 60 इंटू 120 माइनस 45 इंटू 90, है ना? तो व्हाट इज टाउ एवरेज? व्हाट इज टाउ एवरेज? 120 into 10 to the power 3 divided by 60 into 120 minus 45 into 90. So tau average is 38.09. Yes. So what will be the ratio of tau maximum and tau average? 84.57 divided by 38.09. So what is it? 2.22. Is it 2.22? Yes, it is 2.22, right? 2.2 आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
So interesting question it was, the first one. Chalo. So everyone solved it. Shall we move on to the next question? Okay, let's move on to the next question. So this is the next question. Now ये interesting question है, ठीक है? इसको अच्छे से समझो बेटा. Solution is very easy, but you need to just apply a little bit of logic. A beam of rectangular section 100 mm into 300 mm carries certain loads such that the bending moment at A is M and at B is M plus C. Distance between A and B is 0.5 meter and there are no external loads acting between A and B. If the value of C is 10,000 Newton meter, then the maximum shear stress is. थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है and you will be able to solve it like this. Okay, just apply a little bit of logic. Okay, we have a rectangular section, so we can easily calculate tau maximum if we have the shear force. है कि नहीं? shear force है तो shear force से tau average निकल जाएगा and then 1.5 times of tau average will give you tau maximum. So the question is how to calculate the shear force. shear force कैसे निकालना है वो important है इस question में, ठीक है? Now understand beta what they have given you. We have a beam. Okay, let's say there are 2 points on the beam A and B. This is point A, this is point B. Okay, now at A bending moment is M, at B bending moment is M plus C. Okay, so it is something like this, M and M plus C. Now what they are saying is there is no load between A and B. A और B के बीच में कोई लोड नहीं है. A और B के बीच में कोई लोड नहीं है. So if there is no load between A and B, shear force is constant and bending moment is linear. हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगर कोई लोड नहीं लग रहा है तो shear force constant and bending moment is linear. So between A and B, bending moment diagram will be this. A और B के बीच में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनेगा, राइट? नाउ बेटा the slope of this diagram will be equal to how much? shear force, है ना? and what will be the slope बेटा? slope कितना हो जाएगा इसका? slope कितना हो जाएगा? what will be this value? dy कितना रहेगा? dy कितना रहेगा? dm कितना रहेगा? c and dx कितना है? what is dx? 0.5 meter, right? So can I write it C by 0.5 or you can say 10,000 by 0.5. So how much is the shear force? How much is the shear force? 20,000 Newton. है ना? Are you guys getting this? Are you guys getting this? Yes? चलो चलो तो बेटा shear force निकल गया स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से S इक्वल टू dm by dx से we got the equation of we got the value of shear force, right? इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, change in bending moment equal to area of shear force. ठीक है, now shear force is constant तो आपको rectangle मिलेगा S into x, S into length and change in bending moment कितना होगा? C होगा, तो C will be equal to S into length. वहां से भी आप निकाल सकते हो. ओके, उस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो. ओके, सो ईदर यू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दैट विल गिव यू शियर फोर्स. तो स्लोप कितना हो जाएगा बेटा? dy विल बी c, dx विल बी लेंथ 0.5. ठीक है, तो शियर फोर्स आ गया 20,000 न्यूटन. और यू कैन राइट इट चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन b एंड a will be equal to area of shear force diagram, और shear force diagram will be a rectangle. तो वहां से भी you can calculate shear force. Now once you get shear force, you can easily find tau max. Tau max will be
1.5 times of tau average, यानी 1.5 times of shear force by area. So shear force we have got 20,000 and area will be how much? 100 into 300. So how much is tau max? कितना आ रहा है tau max? 1 megapascal. Is it 1 megapascal? Yes. Very good. So B is the answer, 1 megapascal. क्लियर है सबको? Yes. चलो. So shall we move on to the next question? Next question की तरफ चले. Okay. So let's move on to the next question. A symmetric eye section with width of each flange 50 mm, thickness of each flange 10 mm, depth of web 100 mm, thickness of web 10 mm, is subjected to a shear force of 100 kilonewton. Find the magnitude of shear stress in the web at its junction with the top flange. जहां पे वेब और फ्लेंज एक दूसरे से जुड़ते हैं, द जंक्शन वेयर वेब एंड फ्लेंज meet each other, there we need to calculate tau. Okay, so first what I want you to do is draw the eye section. पहले तो eye section बना लो. It is a symmetric eye section. Okay, so it is something like this, right? कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा. This is 50 mm. Okay, this thickness is 10. This thickness is also 10. The depth of web is 100. So this is 100. And neutral axis will be at the center. Okay. Now where do we need to calculate the stress? आपको कहां stress निकालना है? We need to calculate the stress at the junction in the web. मतलब मुझे इस लेयर पे स्ट्रेस निकालना है. I need to calculate the stress in this layer. ठीक है. So बेटा AY bar means we need to consider this area. है कि नहीं? Now put the value in the equation S into AY bar divided by I into B. अब इसमें values रख दो, इसमें values रख दो and find out what will be tau. क्या होगा tau? निकाल लो यहाँ पे जल्दी से. Shear force will be how much? 100 kilonewton, right? AY bar, तो ये एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 50 into 10. And what will be Y bar? इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? What will be this distance? What will be this distance? 50 plus 5, 55. Very good. 50 plus 5, 55 है ना. यहां से यहां तक 50 plus this distance 5, 55. Okay, divided by I. Now I told you how to calculate moment of inertia of I section, right? मैंने I section का moment of inertia निकालना बताया था. Complete rectangle minus this blank space. तो complete rectangle का width is 50 and height is how much? 120 minus blank space का width is 40 and height is 100. So this will be the moment of inertia of this I section multiplied by width. अब width हमको इस layer का रखना है. We are calculating the stress in the web, not the flange. है ना? तो बेटा web की width कितनी है? What is the width of web? 10. So give me tau.
कितना आएगा? Is it 71.12 megapascal? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 71.12 मेगापास्कल, यस 71.12। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। अगर इसी क्वेश्चन में दे आस्क यू टू कैलकुलेट द स्ट्रेस इन द जंक्शन इन द फ्लेंज, everything will remain same, but instead of width of web we will put the width of flange. So instead of 10 here you will put 50. तो उस केस में कितना आएगा? Can anyone tell me? 14.22 megapascal. So on the junction, at the junction, the stress in the web will be 71.12 and stress in the flange will be 14.22, है ना? उसी जंक्शन पे, जंक्शन मतलब जहां वेब और फ्लेंज एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, दिस इज द जंक्शन. सो इन दिस जंक्शन द स्ट्रेस इन द वेब इज 71.12 but stress in the flange will be 14.22. You will put the width of flange if you are calculating stress in flange. Is it clear? Clear है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. A steel section as shown in figure is subjected to shear force of 175 kilonewton. Maximum shear stress induced is. ना बेटा यहाँ पे मैक्सिमम shear stress कहाँ पे आएगा? This is a symmetric section. So maximum shear stress you will get at the कहाँ पे? सेंटर पे, राइट? अब सेंटर पे आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है. ओके, यू नीड टू कैलकुलेट द स्ट्रेस एट द सेंटर. तो इसके ऊपर के एरिया का आपको मोमेंट लेना पड़ेगा, राइट? नाउ बेटा अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. You can calculate the moment of area above this layer by considering it as a complete rectangle and then subtracting these two quarter circle. ये दोनों क्वार्टर सर्कल है ना, ये एक क्वार्टर सर्कल है, ये एक क्वार्टर सर्कल है. दोनों को मिला के क्या बनेगा? दोनों को मिला के क्या बनेगा? कंप्लीट सर्कल बनेगा. तो मैं इसको कुछ इस तरीके से देख सकता हूं. कैन आई सी दिस लाइक दिस? कैन आई सी इट लाइक दिस? इस तरीके से विजुअलाइज कर सकता हूं मैं. अरे हाँ ना बोलो यार. कोई कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है. हाँ ना बोलो. यस. चलो नाउ बेटा वी नीड टू कैलकुलेट ए वाई बार ऑफ दिस एरिया. ठीक है, मैंने क्या किया? दोनों हाफ क्वार्टर सर्कल को जोड़ के एक हाफ सर्कल बना लिया. आई हैव एडेड द क्वार्टर सर्कल एंड आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ हाफ सर्कल. ओके, अब बेटा आई नीड टू कैलकुलेट द ए वाई बार ऑफ दिस एरिया. सो कैन आई कंसिडर इट अ कंप्लीट रेक्टेंगल एंड देन सब्ट्रैक्ट द सेमी सर्कल. इसको एक कंप्लीट रेक्टेंगल मान लेते हैं और फिर उसमें से सेमी सर्कल का ए वाई बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो ए वाई बार विल बी इक्वल टू हाउ मच? इसके ऊपर का ए वाई बार लेना है. ठीक है, इस लेयर के ऊपर का. तो बेटा पूरा रेक्टेंगल का ए वाई बार विल बी हाउ मच? पूरे रेक्टेंगल का विड्थ इज 250 इंटू हाइट इज 150 इंटू वाई बार विल बी 75. ठीक है, माइनस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल विल बी हाउ मच? अब ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितना होगा?
व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, ये रेडियस कितना होगा बेटा, व्हाट विल बी द रेडियस, इट विल बी 50 mm होगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर बाय 2, है ना, area of this semicircle pi r square by 2, pi r square is area of complete circle, pi r square by 2 area of semicircle multiplied by, अब y bar लेने के लिए I have to consider the distance of centroid of semicircle। अब बेटा semicircle का centroid कहां पे होता है, do you remember this formula 4r by 3 pi, 4r by 3 pi, do you remember 4r by 3 pi। सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड कहां पे होता है, सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड कहां पे होता है, यहां पे ध्यान दो, ओके। इफ दिस इज अ सेमी सर्कल, कुछ इस तरीके का अगर आपके पास सेमी सर्कल है तो इसका सेंट्रॉइड कहां पे होगा बेटा, बेस से 4r बाय 3 पाई, ठीक है। द सेंट्रॉइड विल बी दिस y बार विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4r बाय 3 पाई, ओके, रिमेंबर दिस, ओके, इसको याद रखना। तो बेटा 4 इंटू 50 by 3 pi, so you will get ay bar, okay, tell me what is ay bar, 250 into 150 into 75 minus pi into 50 square by 2 into 4 into 50 by 3 pi, 2729166.67, कितना आ रहा है, are you guys getting this, yes, चलो, तो ए वाई बार तो मेरा निकल गया। नाउ आई विल पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, टाउ इक्वल टू एस इंटू ए वाई बार डिवाइडेड बाय, अच्छा आई भी निकालना है, आई भी निकालना है, आई भी निकालना है, तो आई भी निकाल लेते हैं। अब आई निकालने के लिए अगेन आई विल डू द सेम थिंग, आई ऑफ कंप्लीट रेक्टेंगल माइनस आई ऑफ सर्कल। अब मैं अगर इस पूरे क्रॉस सेक्शन को देखूं, देन दिस इज हाफ सर्कल, दिस इज हाफ सर्कल, सो इट विल बी अ कंप्लीट सर्कल। तो बेटा कंप्लीट रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, 250 इंटू 300 क्यूब बाय 12 माइनस सर्कल का कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल, सर्कल का कितना होगा, पाई आर टू द पावर 4 बाय 4, पाई इंटू 50 टू द पावर 4 बाय 4, तो यहां से यू विल गेट आई, है ना, है कि नहीं, 250 इंटू 300 क्यूब बाय 12 माइनस pi into 50 to the power 4 by 4. So how much are you getting? 5575191,261.5 mm to the power 4. Okay. So now tau maximum will be equal to how much? S means 175 kilonewton into AY bar 2729166.67 divided by I into B. So I is 557591261.5 into B. अब B इसका width लेंगे बेटा, B will be the width of this, यानी कि 150, 250 minus 50 minus 50 यानी कि 150. So from here I will get tau maximum, कितना आ रहा है, 175 into 10 to the power 3 into 2729166.67 divided by 557591261.5 into 150, 5.71 मेगापास्कल आ रहा है क्या,
यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. टाउ मैक्स इज 5.71 मेगा पास्कल. यस, एवरीवन इज गेटिंग इट. चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो इस टाइप के इंटरेस्टिंग क्रॉस सेक्शंस भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं. ठीक है. You need to remember the formula of y bar, है ना. सेमी सर्कल का y bar कहाँ पे रहेगा? सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड कहाँ पे रहता है? The centroid of semi circle is at 4r by 3 pi from this base. Okay. चलो, shall we move on to the next question? अब ये जो next question है बेटा, it's a very conceptual question. ठीक है. This next question is a conceptual question. Understand. If a beam of rectangular cross section is subjected to vertical shear force S, then how much shear force will be carried by upper one third of the section? यानी कि पूरा सेक्शन S shear force resist कर रहा है, तो अपर वन थर्ड सेक्शन कितना पार्ट रेजिस्ट करेगा? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? वी हैव अ रेक्टेंगुलर सेक्शन. ठीक है, अपने पास एक ऐसा रेक्टेंगुलर सेक्शन है. ओके, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस. This complete rectangle is resisting S amount of shear force. Then how much? One third, upper one third section will resist. ठीक है, ऊपर का वन थर्ड सेक्शन जो है वो कितना रेजिस्ट करेगा? ऊपर का वन थर्ड सेक्शन जो है वो कितना रेजिस्ट करेगा? मतलब कि इतना पार्ट जो है, दिस मच पार्ट will resist how much shear force. We need to calculate the shear force in this much part. ठीक है. अब बेटा ये shear force जो है हम shear stress into area करके निकाल सकते हैं. कैन वी फाइंड shear force बाय shear stress into area? नहीं निकाल सकते. क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज द स्ट्रेस इज नॉट कांस्टेंट. द स्ट्रेस इज नॉट कांस्टेंट, राइट. स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज पैराबोलिक, राइट. तो अब क्या करेंगे बेटा? अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अंडरस्टैंड. ओके, मैं इतने पार्ट का फोर्स निकालना चाहता हूं. ठीक है, तो आई कांट डू स्ट्रेस इनटू एरिया. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कंसीडर अ वेरी स्मॉल स्ट्रिप. मैं एक बहुत ही छोटी स्ट्रिप कंसीडर करूंगा. ओके, आई एम गोइंग टू कंसीडर अ वेरी स्मॉल स्ट्रिप. ओके, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ दिस स्ट्रिप? डी. ठीक है, and let's assume that the strip is at a distance y from neutral axis. neutral axis से ये कितने डिस्टेंस पे है? y डिस्टेंस. okay, now can I assume that in this particular strip stress is constant because it is a very small strip, है ना. इसकी width कितनी है? the width of this strip is dy. so can I assume the force stress in this strip is almost constant? तो shear force in strip मैं इसको लिख देता हूं df. so can I write it tau into dA, stress into area. now what is the equation of tau for rectangle? do you guys remember? 6s by bh cube h square by 4 minus y square. do you guys remember this equation? do you guys remember this equation? 6s by bh cube h square by 4 minus y square. this is the equation of tau multiplied by dA. now what will be dA? area of strip कितना हो जाएगा? b dy, b into dy. so this is the force in the strip. understand beta, I can't calculate the force of this complete area because I don't know what will be the tau in this much area. it is distributed. so beta, what I am assuming is I am assuming a very small strip. so in this very small strip I can assume stress is constant. so I can calculate the force of strip, stress into area. now I need the force of this entire area, green wala area. तो बेटा F को
मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, इस df को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, आई विल इंटीग्रेट दिस df, आई विल इंटीग्रेट दिस df। कहां से कहां तक करूंगा, कहां से कहां तक करूंगा, कहां से कहां तक करूंगा बेटा, व्हाट विल बी द लिमिट, यहां पे ध्यान दो बेटा, ये कितना होगा, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, h बाय 6, एंड ये कितना होगा, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, h बाय 2, है ना। दिस इज 1/3, मतलब दिस इज h बाय 3 बेटा, दिस इज h बाय 3, 1/3, है ना। तो दिस इज h बाय 6 एंड दिस इज h बाय 2। अब y कहां से कहां तक वेरी करेगा, अंडरस्टैंड, ऑन दिस लोअर लिमिट व्हाट विल बी y, इस लेयर पे y कितना होगा, फ्रॉम दिस लेयर टू दिस लेयर आई नीड टू इंटीग्रेट, यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पे y कितना होगा, व्हाट विल बी y हियर, व्हाट विल बी y हियर, इट विल बी h बाय 6, एंड व्हाट विल बी y हियर, यहां पे y कितना होगा, इट विल बी h बाय 2। So is everyone clear about the limit, लिमिट क्लियर है सबको, इज एवरीवन क्लियर अबाउट द लिमिट। आपको देखना है कि यहाँ लोअर लिमिट होगी, यहाँ अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट विल बी h बाय 6, इस पॉइंट पे y h बाय 6 और यहाँ पे y h बाय 2। ओके, नाउ जस्ट इंटीग्रेट द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में बाकी सब तो कांस्टेंट है बेटा, वो सब बाहर आ जाएगा, b बाकी सब बाहर आ जाएगा, ये b कैंसल हो जाएगा, ठीक है, दिस b and this b will cancel, okay, this b and b cancel, okay। तो यहां आपको क्या मिलने वाला है, f इक्वल टू 6s बाय h क्यूब, ये बाहर आ जाएगा, ओके। इफ यू इंटीग्रेट इट आई विल गेट h स्क्वायर बाय 4y माइनस y क्यूब बाय 3, okay, and this will be from h by 6 to h by 2, तो 6s बाय h क्यूब। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रख दो, तो h स्क्वायर बाय 4 ये हो जाएगा बेटा h बाय 2 माइनस h बाय 6 माइनस 1 बाय 3 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा h क्यूब बाय 8 माइनस h क्यूब बाय 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216। थोड़ा लिमिट रख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, कितना आ रहा है, 7s by 27, are you guys getting this, 7s by 27। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन, 1 by 2 माइनस 1 by 6, दिस विल गिव यू 1 by 3, तो ये आ जाएगा 1 by 12, और ये हो जाएगा 1 by 8 माइनस 1 by 216, 13 by 108 डिवाइडेड by 3, तो 1 by 12 माइनस 13 by 108 into 3, 7 by 162 आएगा, है ना, दिस विल बी 7 by 162, ओके। ये पूरा कैलकुलेशन करोगे 7 by 162 आएगा, एंड 6 और 162 कैंसल होके 27 हो जाएगा, ओके। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट दिस 7s by 27, so the answer is this। So complete cross section is resisting S amount of shear force, but this upper 1/3 part is resisting 7 by 27 of S। Is it clear? Method clear है बेटा। दिस क्वेश्चन हैज बीन देयर इन गेट, ये गेट में आ चुका है, मैकेनिकल में नहीं आया है बट सिविल में आ चुका है, ओके।
This is from GATE only. This question is from GATE, but civil engineering, not mechanical engineering. Okay. So I wanted you to understand the concept behind it. So is everyone clear about it? Yes. चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. So this is the DPP of shear stresses in beams. तो जितने भी प्रॉब्लम अलग अलग टाइप के बन सकते थे हमने किए हैं. अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने किए हैं. ओके. नाउ बेटा टुमारो आई एम हैविंग 2 स्पेशल क्लासेस. ओके. कल 2 स्पेशल क्लासेस हैं. टुमारो देयर आर 2 स्पेशल क्लासेस. ओके. 12 PM पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स फॉर आइडल मटेरियल्स. ओके. आइडल मटेरियल्स यानी कि परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, रिजिड मटेरियल, इनके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे होते हैं. एंड देन 4 PM पे एक्सियल स्ट्रेस ड्यू टू बोल्ट प्रीलोड. Now this is another very interesting topic. नट एंड बोल्ट में जब मैं नट को टाइट करता हूं, बोल्ट प्रीलोड इज क्रिएटेड. ड्यू टू दैट हाउ डू वी कैलकुलेट स्ट्रेस. ओके. बोथ आर फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ओनली. ठीक है. दोनों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ही कॉन्सेप्ट है. तो बेटा ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है कल हम डिस्कस करने वाले हैं. 12 PM एंड 4 PM. ठीक है. 12 PM एंड 4 PM. So remember tomorrow we have these special classes. Okay. Special classes 12 PM and 4 PM. Okay. Chalo. Don't forget to join the Telegram channel if you have not joined till now. Okay. All right. All right. All right. So that's it for today's class, beta. Thank you so much for joining. Thank you so much for joining. I will meet you at 7:30 PM. ठीक है. 7:30 PM पे मिलते हैं. Okay. For the YouTube class. Till then, bye bye. Take care. Bye bye, guys. Take care.